Welcome to my channel, Awareness of Legal Fraternity. As you know, this channel was started to enlighten the members of legal fraternities. Therefore, it has been named like that. Someone says how it is fraternities. Fraternity itself connotes a group of persons having same interest or same cause. That is called fraternity. It may be used as a plural sometime or it may be as a singular. Since it is awareness program, and in order to aware the members of legal fraternity, lecture series have been started covering all important legal aspects about different acts which are relevant not only for the law students or the law practitioners or the judicial officers, but for all concerned who are educated person, anxious person to know the provision of law, or some group of person who acts voluntarily as a social activist or legal activists, appearing before different forums or different departments of the governments, espousing the cause of downtrodden, socially deprived persons or some group of person, or one who acts for general welfare of the public. So all those groups, different groups, if combined together, according to me, all are members of legal fraternities. Means there are several group of persons, and I want to make them aware about the legal provisions which are most frequently used, and all persons concerned are supposed to know correct position of law, correct provision of law, or correct proposition of law, and correct application of law. So therefore, the name is significant, and I want to make you all aware about it, that it is a continuous program, though it started from the lecture series of my lectures delivered before the judicial officers of the state of Bihar in respect of their training program organized by Bihar Judicial Academy under the guidance of the Honorable High Court and funded by the state of Bihar. In this regard, since last lecture was planned before the training program and the routine was prepared already by the academy, and therefore the subject was in respect of provisions of Order 9 CPC. But the judicial officers who have attended the training program, they required some legal assistance from me, and they had so many queries about different acts and different provisions of CPC other than the specific provision of Order 9 which was mentioned in the routine. There was some question and answer, question put by the judicial officers, and I answered all those questions. So some time elapsed in question answer series, then I started the topic, and in last lecture it was concluded, and its heading is Arrangement of CPC. So I think most of the viewers have by now must have watched that lectures on this subject, Arrangement of CPC. Since that lecture was confined to a topic already decided and given to me for deliberation and delivering lecture,
before the judicial officers of the rank of Munsif. The topic was to be touched or explain the subject matter within a specified time. Now I want to extend that topic, and it will continue till the entire scheme of CPC, means Code of Civil Procedure, is explained in my lecture series, so that everybody, whosoever may be, either the law student or law practitioner or judicial officers, who may have any doubt about any provision or who may want clarity on any topic concerning CPC, may watch this lecture series and may be benefited by watching this lecture series on this channel. So I request all the viewers to subscribe this channel, so that as soon as any lecture is uploaded on the channel, you will have a notification. You may also share it, like it, or you may send any comment. I shall try to reply those comments. Recently, I have received certain communications from so many viewers, and they have expressed their desire to deliver lecture on particular subject. I have taken note of all those suggestions and subjects, and I will try my level best to cover all those topics in my lecture series. So my attempt is, at this juncture, is to explain the scheme of CPC. Arrangement of CPC I have made, but the entire scheme is to be understood. Often it is said that CPC is very difficult. Even law practitioner who joins the profession, they avoid to practice in civil side because they feel that it is very difficult. Some judicial officers, there are certain groups of judicial officers, they also feel that this civil side is very difficult, and this, especially the procedure law CPC, is difficult. But my experience is just otherwise. It is very easy. In order to appreciate and understand the provisions of CPC, it is very important that one must understand the scheme of the code and the manner in which these sections have been placed and arranged in the code, subject wise or topic wise, then it is very easy. But since it is a code having different provisions, and it contains several sections, orders and rules. Thereafter appendix, several appendix containing forms, different type of forms, pleadings, notices, summons, warrant, attachment, etc. It is very difficult to remember all those things. It is true, but by and large, as experience will grow, the scheme would be very clear, and arrangement is very scientific. Therefore, in order to appreciate and understand the provisions of CPC, a scientific and holistic approach is required. With that view, if any person would go through it, and it is my attempt in this lecture to make you aware about its background first and then the scheme of the Act. Before it, I want to make it clear, sometimes such questions have been asked for answer. सिविल का हिंदी होता है व्यावहारिक. सिविल कोर्ट मीन्स व्यावहारिक न्यायालय. अब ये ऐसा हिंदी है, व्यवहारिक का मतलब आम लोग समझते हैं व्यवहार में आने वाला. ये व्यवहार में आने वाला नहीं है, वो कानून के संबंध में व्यवहार की बात नहीं है.
हमारे यहाँ जो लीगल जुडिशियल सिस्टम है ये अंग्रेजों की देन है। समय समय पर आज़ादी के बाद विधि विधान में संशोधन होते गए और बदलाव होते गए आवश्यकता अनुसार, लेकिन जो उसका बेसिक सिस्टम है, जो फंडामेंटल रूट बना हुआ है, उसी पर ये पूरा जुडिशियल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियरी वो चलता आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये जानना जरूरी है, टेक्निकली सिविल बहुत जगह इस्तेमाल होता है। जैसे लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग सिविल वर्क, सिविल इंजीनियर ब्रांच होता है इंजीनियरिंग का, तो सिविल इंजीनियर, उसी तरह से सिविल सर्जन। तो सिविल बहुत जगह उपयोग होता है। तो सिविल का मतलब सिर्फ व्यवहारिक नहीं है, ये इस सेंस में सिविल इस्तेमाल किया गया है कि दो सेक्शन है। हर देश में दो सेक्शन है। दो सेक्शन क्या, दो भाग है, या कह सकते हैं दो ग्रुप, अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट, दो ग्रुप ऑफ पीपुल है। एक वैसा पीपुल जो मिलिट्री में है, मिलिट्री मीन्स एज ए होल। हमारे यहाँ 3 प्रकार की सेनाएं होती है, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, ये सिस्टम भी बनाया हुआ है अंग्रेजों का ही। तो वो सब डिफेंस या मिलिट्री ग्रुप हुआ, डिफेंस पर्सनल, जितना भी उसमें आता है आजकल, और बहुत सारे उसमें ग्रुप आ गए हैं। तो जो डिफेंस में है वो डिफेंस या मिलिट्री पर्सनल है या ग्रुप ऑफ डिफेंस पर्सनल है, वो मिलिट्री से संबंधित है या फोर्स से संबंधित है। उसमें पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स, जितने भी फोर्स है वो सिविलियन के संदर्भ में, कॉमन यूज में वो अदर देन सिविलियन है, और बाकी जो दूसरा ग्रुप बता वो सिविलियन है। तो हम लोग सभी सिविलियन हैं, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इसलिए कहते हैं सिविलियन सोसाइटी। दूसरा, सिविल से सिविलाइजेशन भी बना है, तो सिविलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन कहते हैं। मतलब सोसाइटी में है और जो डिसिप्लिन है सोसाइटी का उसको हम लोग पालन करते हैं। इसका मतलब है सोसाइटी के डिसिप्लिन के लिए जो कानून है, विधि विधान है, और उसको पालन करने के लिए आज़ादी के बाद हम लोगों ने संविधान बनाया। उसके पहले तरह तरह के कानून थे। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि हम सिविलियन हैं, और हमारा जो ग्रुप हुआ वो सिविलियन सोसाइटी हुआ। तो सिविलियन के लिए, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के लिए जो न्यायालय और आपसी विवाद को सुलझाए उसको सिविल न्यायालय या सिविल कोर्ट या हिंदी में व्यवहारिक न्यायालय कहते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जब कोर्ट का गठन हुआ था तो इसको बोलते थे दीवानी अदालत, और जहां पर क्रिमिनल केस होता था उसको फौजदारी अदालत, क्योंकि ये दीवानी और फौजदारी शब्द जो है उर्दू में मुगल राज के समय ही आ गया था। तो दीवानी अदालत 2 तरह का होता था। एक मुफस्सिल में, छोटे शहरों में होता था वो दीवानी अदालत, और एक होता था सदर दीवानी अदालत, वो अपलेट कोर्ट होता था जो डिस्ट्रिक्ट में होता था या स्टेट में होता। उस समय स्टेट नहीं कहलाता था, प्रोविंस कहलाता था। तो सबसे पहले अंग्रेज में जो सिस्टम, अंग्रेजों ने जो सिस्टम लाया वो लाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग आज से 500 वर्ष पहले बहुत सारे लोग व्यापारी, हालांकि हजारों वर्ष पहले से आते थे, लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ तो हजारों व्यापारी विदेश से, जिसमें खास करके पुर्तगीज और डच लोग होते थे, वो आते थे। उनकी कंपनी उस जमाने में होती थी, वो लोग व्यापार करने के लिए आते थे इंडिया और जाते थे। उसी क्रम में ब्रिटिश कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी 1600 ईस्वी के आसपास आई थी। लेकिन और सब कंपनियों से ये कंपनी भिन्न थी।
क्यों भिन्न थी कि इस कंपनी को उस समय 31/12/1600 ईस्वी को वहां के राजा, मतलब जिसको ब्रिटिश राज कहा जाता था जमाने में, उनको चार्टर दिया गया था कंपनी को व्यापार करके, मतलब बाजाबता ब्रिटिश सरकार से रॉयल चार्टर माने राजा का फरमान या हुक्मनामा जिसको हम लोग बोलते हैं, चार्टर का सीधा माने हुआ, उनके हुक्म से, आदेश से यहाँ आए और यहाँ आके व्यापार करने लगे। और धीरे धीरे अपना पैर पसारते हुए उन्होंने पहले बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया। आज जो बंगाल है और उस समय जो बंगाल था वो भिन्न था। उस समय के बंगाल में अभी जो बांग्लादेश है और बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, ये सभी मिलाकर बंगाल था। और वहाँ से ही ये प्रारंभ हुआ। वहाँ से प्रारंभ हुआ तो जैसे जैसे अंग्रेजों का आधिपत्य जमा, ब्रिटिश कंपनी का आधिपत्य जमा था, ब्रिटिश कंपनी ने ही पहले शुरू किया कोर्ट। बाद में बहुत ज्यादती होने लगी, तब एक रेगुलेशन बनाया ब्रिटिश सरकार ने। वो कब बनाया? जब 1857 में यहाँ पर मुटनी हुआ था, जिसको सेना विद्रोह कहा जाता था। उसके बाद उन लोगों ने कानून बनाया और कानून बनाने के बाद वो अदालत का भी गठन किया, जिसमें कि फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत का गठन हुआ। और उसके लिए एक कानून बनाया गया, कोर्ट के गठन करने के लिए कानून बनाया गया। उस कानून का नाम है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के लिए कानून बना, उसका नाम है बंगाल सिविल कोर्ट एक्ट 1871। उसी के तहत अंग्रेजों ने 1871 में सिविल कोर्ट बनाया था। उसके बाद इसको बढ़ाया गया, इस कानून को और कोर्ट बढ़ाते गया। तो आज का जो यूपी है और उत्तराखंड है और कुछ हिमाचल का हिस्सा और कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये सब मिला करके उसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस कहा जाता था, वहां तक बढ़ाया। तो बढ़ाने के लिए उसको कानून में सुधार करना पड़ा। 1887 में कानून में सुधार हुआ, तो उसका एक्ट का नाम बदल गया बंगाल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, और इधर पूरब में बढ़ा दिया आसाम तक, एंड आसाम सिविल कोर्ट एक्ट 1887। तो सिविल कोर्ट अंग्रेजों ने बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, वो अपने हिसाब से बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए यहाँ भेजा गया था, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर ज्यादती करना शुरू किया। यहाँ के जो उस समय जमींदार या नवाब हुआ करते थे, उनको हरा के, लड़ करके, उनको मिला करके, किसी तरह से कब्जा करके साम्राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया अपना लिया था। और जहाँ जहाँ उनका वर्चस्व हो गया, वहाँ पर कोर्ट शुरू कर दिया था, और कोर्ट का अपना प्रोसीजर बना दिया था, अपने हिसाब से प्रोसीजर चलाते थे, और अपना सिक्का भी चालू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का अभी भी बहुत जगह आपको म्यूजियम में अवेलेबल है, और इंटरनेट पर भी खोजिएगा, देखिएगा तो मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का। तो एक प्राइवेट कंपनी थी, उसको सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने देश से बाहर जाकर के, ब्रिटिश सरकार ने अपने देश से बाहर जाके व्यापार करने का, खास करके हिंदुस्तान में उस समय जो ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, और ब्रिटिश इंडिया में आज का अफगानिस्तान और बर्मा, ये सब पाकिस्तान और बांग्लादेश सब ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था। नेपाल, ये सब ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत था। अब ये एक्ट जो है बाद में, इस एक्ट को बाद में अमेंड किया गया 1911 में, तो उसका नाम रखा गया द बंगाल आगरा एंड आसाम सिविल कोर्ट एक्ट 1887। बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट
पहला जो नाम था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, उसको हटा करके वहां वर्ड कर दिया गया आगरा। तो इसी एक्ट के तहत सिविल कोर्ट का गठन हुआ है। इसी कोर्ट एक्ट के तहत तो गठन हुआ। अब गठन हुआ सिविल कोर्ट का, तब सिविल कोर्ट कार्य करना शुरू किया। लेकिन पहले से भी सिविल कोर्ट काम कर रहा था सदर दीवानी अदालत के रूप में। दीवानी अदालत, मुफस्सिल में दीवानी अदालत, और स्टेट में अब प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या प्रोविंस में प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में सदर दीवानी अदालत जो अपलेट कोर्ट कार्य कर रहा था। तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीके से अलग अलग रूल्स बना करके जो गवर्नर जनरल को पावर था उसके तहत काम करता था, जुडिशियल रूल्स बना करके उसके तहत काम करता था। तो आज के तारीख में सभी विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के लिए ये जानना जरूरी है कि सिविल कोर्ट जो आज फंक्शन कर रहा है, जिसको हम लोग व्यवहार न्यायालय कहते हैं, ये किस एक्ट के तहत बना। तो उसका जवाब यही है, बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट 1887। स्टार्ट हुआ 1871 में, लेकिन आज वो जो फाइनली अमेंडेड है 1887 का। तो ये कहा जा सकता है कि 1871 में ही सिविल कोर्ट का गठन हुआ उस एक्ट के तहत, और एक्ट में सुधार होकर के 87 में जो रूप आया वही आज तक मौजूद है। उसी के अंदर हमारे यहाँ सिविल कोर्ट है जो सिविल कोर्ट काम कर रहा है। तो यहाँ सिविल कोर्ट में कौन सा मामला आएगा? जो सिविलियन का मामला है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मिलिट्री से संबंधित, आर्म फोर्सेस से संबंधित कोई चीज नहीं होगा। तीनों फोर्सेस जो हमारे यहाँ है उससे संबंधित यहाँ पर कोई केस नहीं होगा। उसके लिए उन लोग का अलग कोर्ट है, मिलिट्री कोर्ट, जिसको मार्शल कोर्ट कहते हैं, उसके लिए अलग लॉ भी है, मार्शल लॉ। तो इसलिए हम लोग सिविल का काम जहाँ होता है उसको बोलते हैं सिविल कोर्ट, जहाँ पर सिविल विवाद का निपटारा होता है, मतलब मिलिट्री से संबंधित विवाद नहीं है। अब दूसरा हुआ कि जब ये एक्ट बना, 1871 में ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन सीपीसी पहले बना। इस एक्ट के 1871 के पहले बना। क्यों पहले बना? क्योंकि पहले से सिविल कोर्ट अलग अलग जुडिशियल रूल्स जो गवर्नर जनरल के आधार पर बना करके काम कर रहा था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक सम्यक रूप देने के लिए 1858 में पहला सीपीसी बना, मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको हिंदी में व्यवहार प्रक्रिया संहिता कहते हैं। तो सबसे पहला जो कानून बना सिविल कोर्ट के कार्यान्वयन हेतु, किस तरह का कार्य करेगा, कितना कार्य क्षेत्र होगा, किस तरह का विवाद का निपटारा करेगा, कौन पदाधिकारी उसका निपटारा करेगा, ये सब संबंधित जो है प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया का वैधानिक स्वरूप दिया गया पहली बार 1858 में, सिविल प्रोसीजर कोड 1858। उसके बाद एक कानून अंग्रेजों ने बनाया, उसका नाम है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, 1861। वो इसलिए बनाया कि जब सिविल कोर्ट होगा तो सिविल कोर्ट में बनाया लोअर जुडिशियरी और हायर जुडिशियरी, मतलब नीचे का न्यायालय और ऊपर का न्यायालय। तो फिर उसके ऊपर राज्य भर में एक न्यायालय होना चाहिए, तो उसके लिए हाई कोर्ट बना। तो उसके लिए हाई कोर्ट बनाने के लिए एक बनाया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। उसी एक्ट के तहत इंडिया में हाई कोर्ट का गठन हुआ। लेकिन जो परीक्षार्थी रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के, उनको ये सब पढ़ाया जाता है, और आजकल तो लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट में आ गया है, हम लोग के ज़माने में नहीं था। तो सभी विद्यार्थी
लॉ के जो हैं या जो न्यू कमर्स प्रोफेशन में आते हैं, ऑलमोस्ट बहुतों से हमारी बात होती है, सब लोग जानते हैं इस बात को। फिर भी आम जनता के जानकारी के लिए और जो विधि व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनके जानकारी के लिए यहाँ पर हम ये एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं कि हाई कोर्ट बनने के पहले 1861 का एक्ट बना, उसके बाद ही हाई कोर्ट बना। तो सबसे पहले हाई कोर्ट बन गया कलकत्ता में ही। लेकिन उस हाई कोर्ट बनने के पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी टाउन कहलाता था। वहां पहले से सुप्रीम कोर्ट था। ये आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं, उस समय का 3 सुप्रीम कोर्ट यहां हुआ करता था। तो जब इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 आ गया तो वो तीनों सुप्रीम कोर्ट को ही हाई कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। और जिसका बिल्डिंग नहीं था या बिल्डिंग छोटा था, उसका अरेंजमेंट किया गया, एक्सपेंड किया गया या रिनोवेट किया गया। लेकिन हाई कोर्ट में जो सिविल मैटर्स जाता था, सिविल केसेस, उसमें सीपीसी अप्लाई नहीं करता था। अब पूछिए क्यों नहीं अप्लाई करता था? तो सीपीसी जो बना था 1858 में और हाई कोर्ट बना था 1861 में। तो जिस समय सीपीसी बना, पहला सीपीसी, तो उस समय हाई कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट था। और सुप्रीम कोर्ट का अलग विधि विधान था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट काम करता था। तो इसलिए उसमें लिखा हुआ था कि जो इस सीपीसी बना वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लागू हुआ था, हाई कोर्ट जो बन गया, कन्वर्ट हो गया, तो उसमें भी लागू नहीं होता था। इस तरह से उस समय उसको जो बोलते थे, कोर्ट को क्राउन कोर्ट बोलते थे। जो सदर दीवानी अदालत होता था उसको क्राउन कोर्ट भी बोलते थे, जो कि उसके लिए रॉयल चार्टर मिलता था। अब ये सीपीसी का अमेंडमेंट हुआ। क्यों अमेंडमेंट हुआ? कि उस समय जो सीपीसी था, आज का जो सीपीसी देख रहे हैं 3 खंड में है। पहला खंड जो है वो सेक्शन है, दूसरा खंड जो है वो ऑर्डर और रूल है, और तीसरा खंड अपेंडिक्स है। 3 भाग या 3 पार्ट या 3 खंड में है। पहला सीपीसी जो था उसमें एक ही लगातार एक सेक्शन से लेके 1700 कुछ सेक्शन था उसमें। तो बहुत डिफिकल्टी होती थी इस्तेमाल करने में, बार को और बेंच को, दोनों को। तो कुछ समय के बाद ही 1877 में फिर उसमें संशोधन किया गया। तो दूसरा सीपीसी आ गया 1877 में, लेकिन अरेंजमेंट वही रहा, सेक्शन ही सिर्फ रहा। फिर जब और कुछ आवश्यकता महसूस हुई तो 1882 में उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया और 3 पार्ट में बांट दिया गया, जिस रूप में आज देख रहे हैं। तो पहला पार्ट सेक्शन, दूसरा पार्ट ऑर्डर और रूल, और तीसरा पार्ट अपेंडिक्स। तो ये 1882 में ही हो गया था। लेकिन फिर महसूस हुआ उसमें और सुधार के आवश्यकता अनुसार, जैसे समय बीतते गया, तो उन लोगों ने, चूंकि ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के अंदर ब्रिटिशर्स ने ही ये सब काम किया। तो 1908 में फाइनल बना सीपीसी। वही 1908 का सीपीसी आज हम लोग के पास है, जिसके तहत हम लोग काम करते हैं। आज किसी भी प्रकार का दीवानी विवाद हो, सिविल नेचर का डिस्प्यूट हो, तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा और उसकी प्रक्रिया सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जो है प्रावधान, उसी के अनुसार होगा। जो व्यक्ति जाएगा कोर्ट में कोई वाद लेके, कोई अपना ग्रीवांस लेके, कोई प्रतिकार की याचना करने, कोई टिकरी मांगने, कोई रिलीफ मांगने, तो उसको उसी के विधान में जो दिया गया प्रावधान है सीपीसी के अंदर, उसके हिसाब से उसको आवेदन देना होगा या अर्जी देना होगा या प्लेंट देना होगा। और जो विपक्षी जिसके विरुद्ध वाद लाया गया है उसको उसी के अनुसार अपना उत्तर पत्र देना होगा, रिटन स्टेटमेंट देना होगा। तब न्यायालय को भी उसी विधान के अनुसार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। ये प्रक्रिया बनाई गई और ये बहुत साइंटिफिकली बनाई हुई है।
जो अरेंजमेंट है, 3 अरेंजमेंट, उसमें पहला पार्ट में जो सेक्शन है वो कोर्ट को पावर वेस्ट करता है। जैसे उदाहरण के लिए सिविल कोर्ट को पावर है इंजंक्शन इशू करने का, रिसीवर अपॉइंट करने का, अटैचमेंट ऑर्डर करने का, किसी डॉक्यूमेंट को कॉल फॉर करने का, एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करने का, बहुत तरह का पावर है। तो वो पावर कहाँ से आया, वो जुडिक्शन कहाँ से आया, तो वो सेक्शन वेस्ट करता है। तब ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर एंड रूल। ऑर्डर का मतलब हुआ आदेश और रूल का मतलब हुआ नियमन। सेक्शन को हिंदी में धारा बोलते हैं। तो दंड व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धाराएं वो शक्ति प्रदान करती है कि किस प्रकार का शक्ति का उपयोग न्यायिक पदाधिकारी करेंगे और किस अनुसार वो अपना कार्य करेंगे ताकि न्याय दिया जा सके। जो वाद लेके व्यक्ति उनके समक्ष आया है उसको न्याय दिया जा सके। तो सारी प्रक्रिया उसके, अगर उस प्रक्रिया में गड़बड़ी होगी तो उनका निर्णय जो है गलत माना जाएगा। इसीलिए प्रक्रिया में उस प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। अगर नहीं अपनाएगा तो वो गलती मानी जाएगी। उसके लिए ऊपर के न्यायालय में जाने पर उनका आदेश निरस्त हो जाएगा। तो प्रोसीड्यूर लैप्सेस कहते हैं इसको, या 2-3 तरह से उसको कहा गया है कि कोर्ट को जो शक्ति प्रदान की गई वो शक्ति का दुरुपयोग किया या उस शक्ति का उसने उपयोग ही नहीं किया न्याय के क्रम में, न्याय देने के क्रम में, निर्णय करने के क्रम में। तो दोनों हालत में वो गलती होती है न्यायिक पदाधिकारी की। उनको जो शक्ति दी हुई है उस शक्ति का सही सही इस्तेमाल करना चाहिए और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो शक्ति दी हुई है वो शक्ति को अपने पास रखे नहीं रहना है मुट्ठी बंद करके। उनको शक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। जो आया है याचक याचिका लेकर के जो रिलीफ मांग रहा है, प्रतिकार या डिक्री मांग रहा है, उसको देना चाहिए। उस शक्ति को प्रदान, शक्ति का प्रयोग करके वो देना चाहिए, बशर्ते कि वो सुपात्र हो। सुपात्र का मतलब कि उसने जो वाद लाया है वो तथ्य को सही कहा है और विधि सम्मत है, विधि प्रक्रिया के अनुसार लाया है और उसको साक्ष्य अधिनियम के तहत उसने अपने तथ्यों को प्रमाणित कर दिया है मौखिक साक्ष्य या कागजी साक्ष्य के द्वारा। सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय जो होता है तो उसके हिसाब से वो निर्णय जो करेंगे वो सही होगा। और यही इसका मूलभूत उद्देश्य है सिविल प्रक्रिया का, कि कहीं पर डेविएशन नहीं हो, कहीं पर गलती नहीं हो, कहीं चूक नहीं हो। न तो वकीलों से हो जो अपने मुवक्किल का कॉज लेके कोर्ट में जाते हैं, उनकी ओर से उनका पक्ष रखते हैं और उनको न्याय दिलाने का अपनी योग्यता एवं क्षमता और अनुभव के हिसाब से अपने पुरुषार्थ और मेहनत से निर्णय उनके पक्ष में लेने का प्रयास करते हैं। उनके लिए भी आवश्यक है कि उसी क्रम में चलें। विपक्षी जो चाहता है कि हम अपने मुवक्किल का पक्ष रख करके हम अपने मुवक्किल को न्याय दिलाएं, उसको लाभ पहुंचाएं, उसको जीत दिलाएं, तो वो अपने हिसाब से उसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा और उसी अधिनियम के अनुसार चलेगा, तभी उसको अपने क्लाइंट के साथ इंसाफ करने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि सीपीसी के स्कीम को हम समझें। तीसरा जो पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपेंडिक्स में ABCDEFGH सब लिखा हुआ है और अलग अलग फॉर्मेट है, उसको लोग देखते नहीं, वो रेन शैडो में है। तो पिछले लेक्चर में हमने उस पर काफ़ी डिटेल्स में बताया है और 3 जजमेंट भी बताया है। जो लोग मिस कर गए हैं वो लेक्चर सुनना, वो लेक्चर जरूर सुने और तीनों जजमेंट को नोट करें। खास करके जो विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं उसको नोट करें और उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, तो इसका एक क्लियर कट कंसेप्शन हो जाएगा कि सीपीसी का अरेंजमेंट कितना साइंटिफिक है आज के तारीख में। और आपके जानकारी के लिए यही बता दें कि आवश्यकता जब हुई, आज़ादी मिली, उसके बाद सर्वप्रथम 1955 में इसमें संशोधन किया गया
उसके बाद बहुत बड़ा संशोधन 1977 में किया गया, जिसके पीछे एक ही मंशा थी। जो कानून बनाने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि पार्लियामेंट, चूंकि सेंट्रल एक्ट है, तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जिनको कानून बनाने का उत्तरदायित्व और शक्ति प्रदान किया हुआ है हमारे संविधान ने, उन लोगों ने विभिन्न उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में और लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार पहली बार 1955 में सुधार किया। वो छोटा था। 1977 में बड़ा सुधार किया गया, जिसमें कि कोशिश किया गया कि लंबी प्रक्रिया चलती है, न्यायालय में लंबी प्रक्रिया चलती है, वो बहुत सा कारण है, वो अभी विषय नहीं है। तो लंबी प्रक्रिया को कम करें, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसको ध्यान में रखकर वो सुधार किया गया। क्योंकि ये बहुत वेल नोन मैक्सिम है, सभी जानते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये हमेशा कंसर्न रहा है पार्लियामेंट का कि सुधार किया जाए। उसके बाद अपेक्षित जो चाहिए प्रतिफल, रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर 1999 में सुधार किया। 1999 के सुधार के क्रम में बहुत ही रेडिकल चेंजेस बहुत मायने में आ रहा था, तो उसमें विवाद हो गया और उस विवाद का निपटारा अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। तो उसमें 2 साल का विलंब हो गया। इसलिए 1999 का जो संशोधन आया, वो संशोधन कुछ सुधार के साथ 2002 में लागू हुआ, और 2002 के संशोधन में बहुत इम्पोर्टेंट संशोधन हुआ है, जो अभी हमारे सामने सीपीसी है। तो इसके बारे में इतना जानना आवश्यक है कि सिविल प्रोसीजर कोड ये हमारा चौथा कोड है, जिसमें वेल एंड साइंटिफिकली अरेंजमेंट किया हुआ है, और उसी ढंग से और उसी नज़रिए से अगर हम उसको पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा समझने में। आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में ये सीपीसी का लेक्चर सीरीज के रूप में चलेगा, जब तक पूरा हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर देते। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, फिर अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, और आगे सीपीसी में जो बहुत मूलभूत बातें हैं, जो हर व्यक्तियों को जानने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या जिनको की वास्ता पड़ता है न्यायालय में जाने का, या जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जाने अनजाने आपत्ति में, विपत्ति में, मुश्किल में, किसी कारणवश वाद विवाद में न्यायालयों में उलझ जाते हैं, या तो वादी के रूप में या प्रतिवादी रूप में। उन लोगों को भी यह जानकर काफ़ी सुविधा मिलेगी कि हमको ऐसे विधि व्यावसायिक व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जहां सही मार्गदर्शन मिले और हमको त्वरित और सही न्याय मिल सके। धन्यवाद।